morning dear 10th class students. Now we already started chapter number 6, that is the life process, and today we are starting our digestive system of man or human beings. So actually it is the digestive system or nutrition in the human beings, shows that how human beings get the nutrients and what are the steps toward that, or what are the main things around that on the behalf of that the food is digested in the human being. So we already discussed yesterday that about the alimentary canal, which is a 9 meter long, and out of this 9 meter there is a 1.5 which is the large intestine, and the small intestine is the 6.5, and rest is the 1 meter. So now it is the when we eat the bay number 99, we eat various types of food which has to pass to the same digestive tract. So ये कह रहे हैं कि देखिए जैसे ही हम कोई भी डिफरेंट टाइप्स के जो फूड है वो जो हम खाते हैं, देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पासेस के अंदर से जाते हैं, and naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. और naturally जो food जो है वो जनरेट पार्टिकल्स होते हैं वो सेम स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं और सेम उनका टेक्सचर जो है होता है. दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट. साइड लाइनिंग ऑफ जो कैनाल है दैट इज द सॉफ्ट, एंड मे बी द ड्यू टू दिस फूड इज आल्सो बेटर टू मेक इट्स पासेज. तो देखिए ये कह रहे हैं कि फूड जो है वेटेड कंडीशन, फूड वेटेड कंडीशन में नाउ द फूड इज ऑलरेडी जस्ट कंबाइन और मिक्स विद द सलाइवा. सो this is achieved by crushing, and when we eat something we like our mouth waters. तो देखिए mouth watering का means है कि this is the actually the secretions of the saliva. It is the secretion of the salivary enzymes, that is the ptyalin and salivary amylase. Okay, so watering of mouth just shows that they are filling the water into the mouth to making the more wet condition of that food. Due to that we have to make a food easily physically digested. Okay, then when we eat something, okay, mouth, this is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. तो ये जो water है एक्चुअल में वो एक प्रकार का saliva है that is secreted from the salivary glands. Another aspects of the food we ingest it is complex nature. देखिए ये जो फूड जो मस्ट भी जो भी हम खाते हैं that is the complex nature. Why we are telling that is a complex nature? Because it contains a carbohydrates, it contains a fat, it contains a protein, it contains a mineral, and it is also having some fibers and roughage. So all are having the different components, all are having the different texture, and all are having the different type of complexities to digest it. So we are having a different type of enzymes we will see here for the digestion of this different type of nutrients in our balanced diet. So this is done with the help of biological catalyst called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks. तो देखिए जो saliva है उसके अंदर जो enzyme है उसका नाम यहाँ पर है salivary amylase that breaks down starch which is a complex molecule to give a sugar. तो ये जो starch एक प्रकार के देखिए फूड के अंदर जो होते हैं कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, तो इसको शुगर के अंदर, शुगर भी अपने आप में देखिए कार्बोहाइड्रेट्स होती है, डिफरेंट टाइप की शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोस है, गैलेक्टोज है, ठीक है ना, उसके अंदर भी डी गैलेक्टोज, डी मैनोस. तो देखिए इस टाइप की देखिए डिफरेंट टाइप की जो शुगर्स है इनको केन शुगर, ग्रेप शुगर इस टाइप से कहते हैं. तो ये जो शुगर है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, और आप जानते हैं जैसे देखिए प्लांट के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा होता है हमारा C6H12O6, then it is a type of glucose and it is also a type of sugar or starch. Okay, so the food is mixed fully with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. ये कह रहे हैं कि जो फूड है वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ और मूव होता है अराउंड द माउथ while chewing the muscular tongue. तो देखिए टंग भी हमारे पास है, and tongue having the many taste buds are present in the our tongue, and this tongue which means thousands of these taste buds are just showing them and just expressing the different type of taste of the food. So it is necessary to move the food in the regulated manner along the digestive tube so that it can process properly in the each part. तो देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो फूड हमने खाया है देन उसका जो पासेज है हमारे थ्रू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर अच्छे से उसका पासेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. देन the lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. तो ये जो lining of canal है उसके अंदर देखिए मसल्स जो इस टाइप की है
कि दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इस लाइनिंग के अंदर होता है हमारे इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को आगे की तरफ प्रोसीड करने के लिए, फूड आगे की तरफ या नीचे की तरफ जो है मतलब स्टमक के रीजन के अंदर आराम से आ जाए। तो इस टाइप का देखिए हमारे अंदर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ओके। और मूवमेंट का नेम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कुछ ज्यादा अलग से नहीं है, इट इज ओनली द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या जो हमारी फूड पाइप है ओसोफेगस है उनके अंदर जो इस टाइप का जो फूड का फॉर्मेशन है या फूड का जो पासिंग है आगे की तरफ फर्दर प्रोसीड होना है, यही कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. तो देखिए स्टोमक अपने आप में एक इलास्टिसिटी वाला ऑर्गन है, ठीक है, एक अच्छा सा ब्लैडर टाइप का एक उसके अंदर मतलब देखिए कंडीशन है जिसके अंदर आराम से फूड को जो है देखिए कैप रखा जा सकता है कुछ समय तक जब तक कि वो डाइजेस्ट नहीं हो जाए। Which expands when food enters it. The muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juices. तो ये जो देखिए मस्कुलर जो हमारे पास है, देखिए फूड आप देख भी सकते हो कि डायग्राम के अंदर कि इस टाइप से फूड आया हुआ है, फिर बाद में देखिए यहाँ पर तो इस टाइप का हमारे पास जो एक बना हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, स्टोमक कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही फूड जो अलाउंग द गट यहाँ पे आ रहा है तो इन्हीं के अंदर हमारे पास में क्या है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हमारा पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। Then again next when the food is just already entered into the stomach, then stomach having a lining and through the lining the stomach secreting some digestive juice, okay। तो इन डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है, then first food is stored in the stomach, okay, जब तक कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो जाए फूड जो हमारे पास में स्टमक में रहेगा। स्टमक के अंदर जब आप देखने जाओगे तो आपको देखिए 3 थिंग्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। फर्स्ट है एसिड, सेकंड है पेप्सिन एंड थर्ड है म्यूकस। देखिए प्रोटीन डाइजेशन का वर्क पेप्सिन का है। HCl के 2 फंक्शंस है आपके पास में, it kills the bacteria, harmful bacteria which we already taken in the food. Sometime the by mistake we have to taken some bacteria in the food, so they kill this bacteria and again it makes the acidic medium through which the only food can be digested. तो ये वो एक acidic medium बनाते हैं फूड का जिसके अंदर आराम से कोई भी जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सकता है। देन अगेन पेप्सिन का वर्क है प्रोटीन का डाइजेशन, ओके। एंड देखिए आप जब भी देखिए कुछ मिल्क वगैरह होता है उनके अंदर प्रोटीन होता है, फर्स्ट दे आर जस्ट कन्वर्टेड इनटू द देयर एसिडिक फॉर्म, ठीक है ना, लाइक द कर्ड लाइक कंडीशंस, ठीक है। देन द प्रोटीन विल बी द एब्सॉर्ब। तो देखिए ऐसा कोई भी जो कोई भी देखिए सब्सटेंस जिसके अंदर प्रोटीन है पहले वो उसकी सोर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, देन उसके अंदर से जो भी प्रोटीन है वो उसके अंदर से निकलने वाला है। और म्यूकस जो है वो एक्चुअली में जो HCl के द्वारा एक एसिडिक मीडियम जो क्रिएट किया गया है फूड के डाइजेशन के लिए, तो इस स्टमक की लाइनिंग को इससे प्रिवेंट करता है। और म्यूकस का जो यहाँ पे मेन वर्क है, इट जस्ट प्रिवेंट द इट मींस द ब्रेकिंग और डैमेजिंग द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अगर ये इस टाइप की लाइनिंग को अगर ये यहाँ पर देखिए सेव या प्रिवेंट नहीं करेगा, देन मे बी द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, ठीक है ना, जो पेट की छाले वगैरह होते हैं स्टमक जो होते हैं उनको हम अल्सर कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्सर यहाँ पे बन सकते हैं। और देखिए पेप्टिक अल्सर आपने नाम भी सुना होगा 9th क्लास के अंदर, तो ये इस टाइप की यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली जो स्टमक के अंदर जो होता है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास में ये 3 देखिए होते हैं, फर्स्ट HCl है, देन सेकंड है पेप्सिन एंड थर्ड है म्यूकस, ठीक है। तो इनके फंक्शंस देखिए आप देख सकते हो। So from the mouth the food is taken from the stomach through the food pipe esophagus. अच्छा ये देखेंगे the mixing the food thoroughly with the more digestive juice. These digestion functions are taken care of the gastric gland present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and a mucus. तो 3 देखिए इसके पास में रिलीजमेंट है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, that is the HCl, pepsin and mucus. The hydrochloric acid देखिए 2 फंक्शन है यहाँ पे, create acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin. बिना इसके HCl फंक्शंस के इस पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब HCl के द्वारा एक एसिडिक मीडियम क्रिएट किया जाएगा, देन ओनली द पेप्सिन कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस, ठीक है ना। Then what other functions do you think is served by the acids? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid, ठीक है ना। I already shown here कि म्यूकस जो है हमारी जो इनर लाइनिंग है इस हमारे देखिए स्टमक की, उसको HCl के द्वारा क्रिएट किए उस एसिडिक मीडियम से प्रिवेंट करते हैं। नाउ वी
We have often heard adults complaining about the acidity. So can this be a related what has been discussed above? तो देखिए जनरली एक एसिडिटी जो फॉर्म है, एसिडिटी देखिए कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एसिडिटी और बेसिसिटी वाला वर्ड है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर किसी के अंदर भी एसिडिक वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, then that is the acidity, and if the basic characteristic means the basicity, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी HCl का ज्यादा सिक्रेशन हो जाना, या यूं कहें कि ओवर देखिए डाइजेशन के कारण, ओवर डाइजेशन के कारण हमारे पास में देखिए HCl जब ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, then the formation of the acidity like condition in which the accumulation of the acid in the stomach will be the more on that time, ठीक है ना। तो ऐसे समय में एसिड का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा होता है, और ऐसी कंडीशन में देखिए एसिडिटी के कारण जो इनर लाइनिंग के अंदर बर्निंग सेंसेशंस जो है वी हैव टू सी लाइक दैट समवेयर इन स्टमक द बर्निंग सेंसेशन लाइक वी हैव टू सी, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ दैट टू मच एक्युमुलेशन एंड टू मच सिक्रेशन ऑफ द HCl. The exit of the food from the stomach is regulated by sphincter muscles which release into the small intestine into the small amounts into the small intestine. देखिए कह रहे हैं स्फिंक्टर है एक लीड लाइक कंडीशन है जिसके अंदर फूड जो है बाद में स्टोमक से जो है किसके अंदर एंटर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. So from the stomach the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into the compact space because of the extensive coiling. बहुत ज्यादा देखिए इसके अंदर coiling इस टाइप की जो है आप पीछे की तरफ देखेंगे, ये इस टाइप की देखिए, इस टाइप की coiling जो है इस टाइप की होती है. तो ये जो ये coiling है इसी की वजह से इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना. मैंने आपको बताया 6.5 मीटर. तो ये जो coiling है काफी ज्यादा नैरो होती है, बहुत ज्यादा नैरो होने के कारण इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, ना कि लेंथ के कारण. अंडरस्टूड. और थोड़ी सी जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है मतलब मैं कहूंगा कि डायमीटर या थिकनेस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है. तो यहाँ पर जो हमारे पास देखिए ये टू मच लॉन्ग ऑफ लेंथ ऑफ जो ये है इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा फूड का हमारा डाइजेशन होने वाला है. देखिए The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर length of the small intestine है वो सबसे पहले तो देखिए इसकी जो बहुत ज्यादा coiling होती है, इसी coiling की वजह से ये छोटे से भाग के अंदर मतलब छोटे से पार्ट के अंदर भी आराम से ये रह सकती है. बाकी तो देखिए आप जान सकते हो कि एक 6.5 मीटर यहाँ से लेके मतलब वहां तक की एक डिस्टेंस होती है, मतलब बहुत लंबी सी डिस्टेंस होती है, बहुत छोटी नहीं होती है. देखिए तो then the length of the small intestine differs in the various animal depending on the food they eat. ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आपके पास में देखिए जो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाता है किसी भी एनिमल्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, मे बी द सिंपलर और कॉम्प्लेक्स, तो ये कह रहे हैं कि वो क्या फूड ले रहे हैं, दे आर द हर्बीवोरस और दे आर द कार्निवोरस. हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है उसके बेस पर इनकी जो लेंथ है इनके अंदर डाइजेशन जो होता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की नेचर होता है. तो ये कह रहे हैं हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना. इनके अंदर ग्रास जो खाते हैं और लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन बहुत स्लो होता है, बहुत देर से डाइजेशन होने के कारण इनके पास में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. और जबकि दूसरी तरफ देखिए मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. मीट जो है आराम से इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए कार्निवोरस के पास में जो है एक शॉर्ट मतलब छोटी टाइप की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और जल्दी से इनके अंदर फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. देखिए ये कह रहे हैं कि द स्मॉल इंटेस्टाइन भी वो प्लेस है जहां पर देखिए कंप्लीट डाइजेशन होता है. कंप्लीट डाइजेशन से मतलब है कि अब तक देखिए जो हमारे पास फिजिकल डाइजेशन हो रखा है माउथ की बकल कैविटी के अंदर, कुछ एक डाइजेशन जो हमारा यहाँ पर हुआ है, प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन हुआ है, इस टाइप का हुआ है, ठीक है. मेकर जो है इन्होंने इनर लाइनिंग को सेव किया, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारा ऐसा बड़ा पार्ट है फूड का जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म है. तो मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो है नाउ जो है वो होने वाला किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का ही सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा, बिकॉज मिनरल्स जो होते हैं उनकी तो बहुत लेसर क्वांटिटी मतलब बहुत एक मिनट क्वांटिटी की ही रिक्वायरमेंट होती है मिलीग्राम्स के अंदर, ठीक है. और दूसरे फाइबर वगैरह, रपेज वगैरह इन्हीं के साथ में बने रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा उनका ही मेन वर्क होता है देखिए डाइजेशन करवाना, मतलब फूड को डाइजेस्ट करना. अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन लाइक की जो कंडीशन है वो हो जाती है. तो ये कह रहे हैं इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस. जो ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास में देखिए 2 ग्लैंड्स इससे एसोसिएटेड है जो यहाँ पर क्या करने वाली है, देखिए ये जो डाइजेस्टिव के लिए जो जूसेस है उनको सीक्रेट करने वाली है. तो उसके अंदर पहला है हमारे पास देखिए मान लीजिए लीवर, एंड सेकंड क्या है, पैनक्रियास. क्या है, लीवर एंड पैनक्रियास. देखिए ये लीवर है एंड देन पैनक्रियास.
लीवर के द्वारा देखिए डायरेक्टली जूस को सीक्रेट नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन जो है वो लीवर के द्वारा किया जाता है। जूस आर जनरली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, स्टोर्ड रहता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। और एक्चुअली में इसके द्वारा जो जूस सीक्रेट किया उसका नाम है बाइल जूस। ओके, तो बाइल जूस। पैनक्रियास देखिए देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर से, वैसे लीवर वगैरह भी है, लेकिन पैनक्रियास के अंदर भी सीक्रेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखिए इसके अंदर से आपको एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज दिखने वाला है, ठीक है। सेकंड जो है ट्रिप्सिन है एंड लाइपेज है। इसका मेन डाइजेशन फैट का है, इसका मेन डाइजेशन आपका स्टार्च का है, सॉरी स्टार्च का ओके, वी विल सी हियर। तो देखिए पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैक्सिन, प्रोटीन है एंड स्टार्च है। तो देखिए पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है ना, जो पैनक्रियास के द्वारा सीक्रेट है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, स्टार्च, ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन, और लाइपेज जो है वो आपका जो है फैट के डाइजेस्टिंग उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। देखिए so it receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic. देखिए सबसे पहला जो वर्क है कि अब जो ऑलरेडी एसिडिक फूड जो है वो भी एंटर कर रहा है किसके अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहले फूड का जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलीन मीडियम के अंदर चेंज करना जरूरी है, बिकॉज फर्दर जो डाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एल्कलीन मीडियम के अंदर ही डाइजेशन पॉसिबल है। अंडरस्टूड। तो ये कह रहे फर्स्ट जो है एल्कलीन नेचर हो जाएगा for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplished, then in the addition to acting on the fats are, देखिए तो इमल्सिफाइंग फैट का जो मेन वर्क है, ठीक है ना, मतलब फैट का डाइजेशन जो है वो मेन जो है वो किसके द्वारा है, बाइल जूस के द्वारा। The bile juice from the liver accomplished the addition to acting on the fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act on them. ये बहुत बड़े देखिए फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े से, एक्चुअली ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, इसलिए स्पेशली बाइल जूस सिर्फ इन्हीं के ऊपर ट्रीट करता है, इन्हीं के ऊपर देखिए वो एक प्रकार का अटैक करता है ताकि उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट किया जा सके, and which makes it difficult for enzyme to act. Bile salts break them into the smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying actions of soap in the dirt that we have learned about in chapter 4. ये ठीक देखिए emulsifying उसी टाइप से जैसे कि सोप की जो एक्शन है वो आपने चैप्टर 4 के अंदर जो है वो पढ़ी थी कि कैसे सोप जो है आराम से जो डर्ट के जो मॉलिक्यूल्स थे, विशल फॉर्मेशन वगैरह आपने देखा हो, तो ये जो डर्ट के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको ब्रेक डाउन करने का जो वर्क था, वैसे ही फैट के ग्लोब्यूल्स को बाइल जूस मतलब बाइल सॉल्ट्स के द्वारा ब्रेक करने का या उनको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करने का वर्क भी किसका है, हमारे पास बाइल जूस का। The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzyme like trypsin for digesting protein. तो देखिए ट्रिप्सिन जो है वो हमारे पास प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट, मतलब फैट ऑलरेडी इमल्सिफाइड फैट है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स से थोड़ी लेस कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी चेंज होगी, मतलब थोड़ी तो ब्रेक डाउन हुई है, बट इफ वी वांट एनर्जी फ्रॉम देम देन वी नीड टू ब्रेक सम मोर इन कंडीशन। तो मतलब अगर हमको उनसे एनर्जी चाहिए देन वी नीड टू मोर कन्वर्ट इनटू द सिंपलर फॉर्म, उसको और ज्यादा सिंपलर फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। The walls of the small intestine contain a gland which secretes a intestinal juice. देखिए अब जो walls है उनके अंदर जो intestinal juice होता है, ठीक है ना, ये intestinal juice है जो किसकी small intestine की जो walls उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ किसके ब्रेकडाउन के लिए, स्टार्च के लिए, फैट के लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो है आपका अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज हो जाता है, फैट आपका जो है फैटी एसिड्स है ग्लिसरॉल्स के अंदर, एंड जो स्टार्च है वो मोर देन जो मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है आपका, सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोर स्टार्च के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रोटीन, और देखिए प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो है पेप्टोन्स वगैरह, पेप्टाइड्स वगैरह इस टाइप से होता रहता है, बट अल्टीमेटली जो प्रोटीन है वो हमारा जाके किसके अंदर चेंज होने वाला है, अमीनो एसिड्स के अंदर, किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर, एंड फैट जो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज हो जाएगा। देन वी हैव टू टेल दैट इट इज द डाइजेस्टेड फूड इज the enzyme present in finally convert the protein into amino acids। तो ये अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो देखिए वही चीज है कि हमारे पास देखिए जो ग्लैंड्स होगी इंटेस्टिनल जूस के अंदर सबसे पहले तो प्रोटीन जो है किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर, किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ग्लूकोज, स्टार्च ग्लूकोज एक ही बात है हमारे पास, वो उसी फॉर्म में रहने वाला, एंड
फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज होगी। The digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like position called villi. तो देखिए बहुत सारा सबसे ज़्यादा जो important things है हमारे पास body के अंदर, because देखिए food already we have taken, now digested also, but now it is the time of the absorption. If food is we cannot utilize the food in the form of taken up the nutrition and nutrients, then we cannot get the instant energy from the food. So first of all, what is the main function of the small intestine? To digest the food, and they are having the millions of villi and microvilli. Okay, so that is the main functions of the villi and microvilli, is that absorption of the nutrients or absorption of the energy from the digested food. The villi are richly supplied with the blood vessels which take the absorbed blood to each and every cells of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of the old tissues. तो देखिए नए सेल्स को बनाने के लिए, रिपेयरिंग करना ओल्ड सेल्स को करने के लिए, एंड यूटिलाइज करना ऑब्टेन एनर्जी का, ये सारा का सारा काम जो है वो विलाई के द्वारा होता है। विलाई एक्चुअली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखिए आप देख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का प्रोजेक्शन रखूंगा, देन द एब्जॉर्प्शन एरिया आई एम गेटिंग ओनली दिस, बट इफ आई एम एब्जॉर्बिंग एरिया लाइक दैट, then I have a more absorption area in this covered, it means I am having a more absorption area in the small intestine. तो ये देखिए जो छोटे छोटे फिंगर लाइक जो ऑब्जेक्शंस है और माइक्रोविलाइज भी है, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रोविलाइज एंड विलाइज जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करने वाला है इस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी का, ठीक है। The unabsorbed food is sent to the large intestine when more villi absorb water from the material. कुछ जो unabsorbed food होगा उसको जो है हम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज देंगे, जहां पर कुछ एक अमाउंट में जो फूड है उसको ले लिया जाएगा, एंड एक्यूमुलेशन जो है, एसिमिलेशन जो है फूड का हो जाएगा। The rest of the material is removed from the body by the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. तो ये कह रहा है कि जो रेस्ट ऑफ द फूड जो भी अब जो है हमारे पास देखिए ऑलरेडी फूड के अंदर से एनर्जी को ले लिया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से जो कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको भी ले लिया जाएगा, अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल जो भी बचेगा उसको एनल स्फिंक्टर मतलब एनस के द्वारा जो है बाहर भेज दिया जाएगा। तो इस टाइप से देखिए ये विलाई माइक्रोविलाई का रोल जो है मेन है हमारे पास एब्जॉर्प्शन एरिया इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ और सिर्फ वर्क एसिमिलेशन का है और वाटर एब्जॉर्प्शन का है, और कुछ एक अमाउंट में अगर एनर्जी फिर भी लेफ्ट है उस फूड के अंदर से, देन दे हैव टू बी अब्सॉर्ब, ठीक है ना। So I hope you are understanding this digestive system of man or human being, or also you have to tell this is the digestive system of complex multicellular organisms, complex multicellular organisms. हाँ yes, look the dental caries. देखिए डेंटल कैरीज का मतलब है कंटिन्यूअसली डिग्रेडेशन ऑफ द टीथ, ओके। तो ये कह रहे हैं डेंटल कैरीज और टूथ देखिए कॉज अ ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामेल एंड डेंटाइन। तो देखिए सबसे ऊपर जो है आपकी इनामेल है, देन डेंटाइन है, देन पल्प है, ठीक है ना। आपका जब आप टूथ का स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप से देखने वाले, देन सबसे ऊपर की तरफ जो हार्डेस्ट देखिए जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी का वो है इनामेल, देन इसी के नीचे की तरफ एक जो लेयर है वो हमारे पास में एक डेंटाइन है, और इसके नीचे की तरफ जो एक गया हुआ है, ठीक है, यहाँ से उसको हम कहते हैं पल्प, ठीक है। और बहुत सारी आर्टरीज वीन्स जो है वो हमारे जॉज जो है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो मसूड़े उनके अंदर भी गई हुई आर्टरीज वीन। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है, और दूसरा जो इसकी देखिए जो सेंसिटिविटी है टीथ की वो इनामेल के पास में है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि देखिए इनामेल जो एक तो हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और किसी भी कोल्ड या बहुत ज्यादा हॉट सब्सटेंस को डायरेक्टली जो टेम्परेचर को जो देखिए एब्जॉर्ब करने वाले या इनको सहन करने वाले वो ये इनामेल ही है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हॉट या देखिए जो कोल्ड फूड वगैरह इस टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, आप डायरेक्टली अपने माउथ के डिफरेंट ऑर्गन्स पर नहीं ले सकते, बट आराम से अपने टीथ वाले रीजन्स के अंदर आराम से ले सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू दैट दिस इनामेल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी देखिए फूड खाने के बाद में या देखिए डेली मील के बाद में जो भी आप फूड खा रहे हैं मतलब लंच या डिनर के बाद में, इफ यू आर नॉट ब्रशिंग द टीथ, देन द सम sugar particles, ultimately the food is converted into the sugar, then some sugar particles are just it is the increase the actions of the bacteria, ठीक है ना, वो इंक्रीज कर लेते हैं बैक्टीरिया के एक्शन को, और ये बैक्टीरिया की एक्शन जो है कंटिन्यूअसली इस इनामेल को जो है डिग्रेडेट या डिकम्पोज करती रहती है। तो इस वजह से कई बार जो हमारे जो टीथ वगैरह है बिल्कुल बहुत ज्यादा सेंसिबल हो जाते हैं,
इसका मतलब ये कि हल्का सा ज्यादा कोल्ड या कुछ हॉट फूड या मतलब इस टाइप का जो वार्मनेस वाला ल्यूक वार्म वाटर वगैरह इस टाइप का मतलब पीने पर भी आपको जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखिए टीथ के अंदर जो पेन वगैरह उस टाइप की कंडीशन हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि इट बिगिंस विद द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन देन दी मिनरलाइज द इनामेल। ये कह रहे हैं कि इनामेल को जो है कंटिन्यूअसली इस देखिए मतलब फूड के शुगर पार्टिकल्स के द्वारा ये इनामेल जो है कंटिन्यूअसली क्या डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो जाती है अगर आप ब्रशिंग नहीं करते हैं। तो देखिए पूरे रात भर जब आप ब्रशिंग देखिए नहीं कर पाओगे मतलब कुछ शुगर पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे रहे देन दे आर फॉर्मेशन द एसिडिक देखिए मीडियम, यहाँ पर एक प्रकार का एक एसिडिक मीडियम फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ब्रशिंग वगैरह करते हैं you are using the toothpaste which contains the alkaline medium, ठीक है ना, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से बेस होता है, they can just neutralize the acid which is already present in our mouth, ठीक है ना। तो जैसे देखिए आप इससे देखिए ब्रशिंग वगैरह करोगे आप देखना कि बहुत सारे देखिए फोम वगैरह जो है झाग वगैरह वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं एंड दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस। और ऐसा होता ही है कि जब भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करे देन सॉल्ट प्लस वाटर और बहुत सारे देखिए इस टाइप से एक जो गैसेस का फॉर्मेशन वगैरह है बबल्स का फॉर्मेशन होता है एसिडिटी वाली कंडीशन में भी इसी टाइप का होता है जब हम इनो का यूज करते हैं, ठीक है। The enamel masses of the bacterial cell together with the food particles stick to the teeth to form a dental plaque and saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid to plaque covers the teeth। तो ये कह रहे थे कि सलाइवा की भी कुछ एक्शन बेसिस जैसी है बट सलाइवा देखिए हर टाइम जो है हमारे माउथ के अंदर सीक्रेटेड नहीं रहेगा, ये सिर्फ बॉर्डरिंग ऑफ द माउथ फूड वाली कंडीशन या फूड के समय जो है उस समय मोस्टली ज्यादा रहती है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक ऑफ बिफोर द। तो देखिए प्लेक कुछ अलग से नहीं है, ये एक प्रकार की येलो एक हार्ड कवरिंग या एक मैं कहूंगा कि येलो टाइप की जो लेयर है वो इनके ऊपर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना, जो फर्दर कंटिन्यूअसली होने पर इस इनामेल को डिकम्पोज करती रहेगी, ठीक है। ब्रशिंग द टीथ देखिए इसका मतलब ये है कि ट्वाइस द ब्रशिंग द डेली, ठीक है ना, आपको डेली जो है 2 बार आपको कम से कम ब्रश करना चाहिए, ठीक है ना। एक नाइट समय में जब आप फूड को ले ले मतलब देखिए डिनर के जस्ट बाद में और एक मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। Then brushing the teeth, it if untreated microorganisms may invade the pulp and causing the inflammations and infections। तो ये देखिए उस पल्प को क्या कर सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं, उनको पेनिट्रेट कर सकते हैं, उस पल्प जो सबसे अंदर वाला पार्ट है देखिए मैंने आपको बताया था पल्प वाला, ठीक है, इनामेल डेंटाइन एंड पल्प देखिए, तो ये कह रहे पल्प को इन्वेड कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा मतलब ब्रशिंग ही इसका एकमात्र जो है आप ज्यादा मतलब कह सकते हो कि इसका एक प्रिवेंशन है, ठीक है। So dear students, this is your today's homework, okay, that animals groups on the basis of their food habits, okay, herbivorous, carnivorous and omnivorous, and next is nutrition in unicellular organs, that is the amoeba. It means amoeba, okay, amoeba is a unicellular organs and you have to write when you are asking about the write the mutations or the digestive system in the unicellular, then you have to write about the amoeba. Nutrition in complex multicellular organs in human beings, so you have to write about the human beings, okay. Thank you.